but mainly as I said already in last class, that whenever we have a application, when we identify the application for KVL, We can connect voltage source to one side and short circuit other side. okay, वो एक दूसरा aspect होगा. But what I shared is whenever we see the applications of Kirchhoff's law, that is KVL का application is in impedance parameter calculation and KCL का application is in admittance parameter calculation. तो अगर आपको Z parameters निकालने हैं तो KVL can be applied and admittance parameter find करना है तो KCL can be applied. Is it clear with this point? So what I said is, कोई न्यूमेरिकल याद है आप लोगों को जो हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में? कैन यू जस्ट सी दिस न्यूमेरिकल नंबर 3? क्या डिस्प्ले हो रहा है क्या न्यूमेरिकल नंबर 3? ओके ओके, इसमें आप देखिए कौन सा लॉ हम लोगों ने अप्लाई किया था? KVL. सर KVL. ओके, सो इसका मतलब व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ KVL? अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, तो वन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम दिस टू पोर्ट साइड आई कैन टेल इज KVL का एप्लीकेशन इज टू फाइंड द impedance parameters and KCL का application is to find the admittance parameters. और इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में भी मैंने आप लोगों को कहा था, एंड KVL और KCL either of the two is applied to get the ABCD parameters. So all of you can remember KVL is find impedance parameters, KCL for admittance parameters, or either KVL or KCL depends on the circuit, and simplicity or complexity, ABCD parameters. Okay, so now can you just tell me कौन सा लॉ यहाँ पर लगाना चाहिए? Can you just identify the law to get the short circuit parameters? Can you just identify the type of law through which we can find the short circuit parameters? KCL. Okay, KCL we have to apply. Okay, what is KCL? Kirchhoff's current law. Right? Current law. Okay, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले KCL लगाने के पहले you have to identify the nodes, जो हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो की थी नोडल एनालिसिस यूनिट 2 में, वही प्रोसेस यहाँ पर रहती है. जैसे यहाँ पर देखते हैं कि सप्लाई वोल्टेज आपने इनपुट पोर्ट दिया हुआ है V1, जिसकी वजह से यहाँ से एक करंट पास हो रहा है I1. अब ये करंट I1 आपका इस पॉइंट तक पास हो रहा है, राइट? इस पॉइंट पे ये करंट डिवाइड होगा, एक करंट आपका पास होगा इस नोड से 2 ओम से पास होते हुए टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर नोड, एंड अनदर करंट passes through 1 ohm resistance towards this particular node. अब यहाँ पर ये जो लाइन है 1 डैश और 2 डैश के बीच का, यहाँ पर मैं एक रेफरेंस नोड ले सकता हूँ. कैन यू टेल मी द पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस नोड? 0 volts. Okay, so it is 0 volt. What that reference node is also called as? Atom node. Atom node. Okay, so when we have a I1 current passes up to this point, here we get the division, right? Okay, now is there any element present between this one and this particular point? No. It means, can I say that the voltage which is applied between 1 and 1 dash is similar to the voltage which is available at this particular node? यानी इस नोड का वोल्टेज अगर मुझे पूछा जाए, if I just call this node as node A,
So if you ask me the potential at this particular node, we can represent it with V1. The reason is there is no element present between the 2 points. That is between 1 and between A. There is no element present. So we can say that this potential at A is nothing but the V1, which is similar to the potential between 1, 1 dash. Now similar way, the potential at this particular point, यहाँ का potential क्या रहेगा? तो if I just call this as node B, so I can say that node B and node 2 both are similar because there is no element present between the two. और यहाँ पर कोई element present नहीं है, इसका मतलब potential at this node B is V2. यानी मुझे V1 और V2 मिल चुका है. So now I have to find out the parameters admittance Y11 से लेके Y22 तक. Now for that purpose I have to apply KCL. So let us apply KCL at node A. तो जैसे आप नोड A पे KCL अप्लाई करते हैं, तो what you get, what you can write is I1 because the incoming current. KCL क्या कहता है? The summation of incoming current is equal to summation of outgoing current. समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, आपके जितने भी करंट्स उस नोड के तरफ जा रहे हैं उनका समेशन, और उस नोड से जो बाहर निकलने वाले करंट्स है उसको हम कहते हैं आउटगोइंग करंट्स. सो जैसे यहाँ पर आपके 3 करंट्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस नोड ए से कनेक्ट हो रहे हैं. एक है आपका I1, दूसरा ये करंट जो 2 ओम से पास हो रहा है, और तीसरा ये 1 ओम से पास होने वाला करंट. सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके इनकमिंग करंट. अब देयर आर 2 आउटगोइंग करंट. नाउ द करंट्स आर passing from V1 to V2. So it means the current at potential V1, that is V1 is at high potential and V2 is at low potential because current is flowing from V1 to V2. So यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ directly the equation to this particular current. ये जो current मैं यहाँ पर indicate कर रहा हूँ arrow से, इस arrow का जो current रहेगा उसको मैं equation के form में लिख सकता हूँ. Otherwise you can write it as, say, if I just call this current as IA, okay, and if I just call this current as IB, so what I can write is I1 is equal to IA plus IB. That is summation of incoming current is I1 and outgoing current का summation is IA plus IB. अब I1 तो मैं equation के form में लिख रहा हूँ, so therefore I1 is equal to IA करंट आपका कहाँ से पास हो रहा है? From V1 to V2. अब अगर V1 से V2 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब V1 is at high potential and V2 is at low potential. तो by using Ohm's law, what I can write is V1 minus V2 upon 2. So this is what the equation of current IA. यानी करंट IA का इक्वेशन आपने कौन सा लॉ यूज करते हुए लिखा? You have used Ohm's law. You have used Ohm's law. So Ohm's law के हिसाब से potential difference upon 2. Okay. Plus अब IB करंट आपका कहां से कहां जा रहा है देखते हैं. ये नोड A से डाटम नोड के तरफ जा रहा है 0 वोल्ट के तरफ. सो दिस इज पासिंग थ्रू 1 ओम. द पोटेंशियल एट दिस नोड A इज V1 बट पोटेंशियल एट दिस नोड इज 0. इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगा? V1 minus 0 upon 1. So what I can write is I1 is equal to, now I just convert this divided by 2. Divided by 2 यानी 1 by 2 है. So I just convert this divided by 2, 1 by 2 is, I just write it as 0.5. Okay. So 0.5 ये replace किया मैंने 1 by 2 को, multiplied by V1, alright, minus 0.5 multiplied by V2 plus V1. Now it is equal to, now I am just collecting the terms of V1 or constants for V1. So जब constants या terms मैं V1 के collect करता हूँ, तो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पर 1 है, so I can write it as 1.5 into V1. अब 0.5 V2 के terms मैं अगर collect करूँ, तो what I can write is 0.5 into V2. So this is my equation 1. I think all of you can see this as equation 1. So ये हो गया आपका at node A. उसी तरीके से you can write it for node B. KCL at node B. So apply KCL at node B. अब KCL at node B क्या होगा वो देखते हैं.
अब इसको आई जस्ट कंसीडर दिस करंट इज इनकमिंग, और अदरवाइज यू कैन से दैट जैसे ये करंट आपका इनकमिंग है, ये करंट आपका B से डिवाइड होगा, एक करंट पास होगा इस 2 ओम से, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग द करंट I2 और डिवाइड होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ 2 ओम करंट इज फ्रॉम V2 टू V1. एक तो आप यही डायरेक्शन ले सकते हो, और अदरवाइज यू कैन कंसीडर योर ओन डायरेक्शन, नो इश्यू. So if I say that the I2 is only the incoming current to node B, and these two currents, this and this current, these two currents are outgoing currents, then what I can write is, again by referring the same equation, summation of incoming current. अब incoming current उस node के लिए एक ही रहेगा, that is I2 is equal to summation of outgoing current. Again you find there are two outgoing currents. One is this current जिसको नाम हमने दिया था IA, अब इसको नाम दे देता हूं मैं IC. So I just call that as IA plus IC. अब I2 तो मेरा as it is रहेगा, therefore I just write I2 is equal to IA क्या रहेगा. Now I am assuming this direction of current is from V2 to V1. So what I can write is V2 to V1 अगर जा रहा है, so इसका मतलब V2 minus V1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2. ये कहां से लिख रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग ओम्स लॉ. सो IA का इक्वेशन यूजिंग ओम्स लॉ गिव्स मी दिस. उसी तरह ओम्स लॉ IC के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर. सो प्लस, अब ओम्स लॉ IC के लिए क्या रहेगा देखते हैं. IC आपका करंट पास हो रहा है फ्रॉम V2 टू दिस डाटम नोड जिसका पोटेंशियल है 0. सो आई कैन राइट इट एज V2 minus 0 अपॉन 2. So V2 minus 0 upon 2. So this is the equation for I2. एक बार फिर से देखते हैं. KCL at node आपने अप्लाई किया. Incoming current equal to outgoing current. You have checked how many incoming currents are there. You found it is I1. So you wrote the equation as I1 equal to IA. You called this particular current as IA. You called this current as IB. Okay. You called this current as IA again. You called this current as IC. So अगर I1 आपका डिवाइड हो रहा है IA और IB के फॉर्म में, so you are getting KCL इक्वेशन I1 equal to IA plus IB. फिर आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया और IA यानी करंट का इक्वेशन लिखा. सो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर दो वोल्टेज है, V1 minus V2 अपॉन रेजिस्टेंस एज 2. फिर आपने IB का इक्वेशन लिखा उसी तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए. सो यू गॉट V1 minus 0 डाटम नोड का पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस एज 1. इसको आपने सॉल्व किया एंड यू आर गेटिंग वन इक्वेशन फॉर I1 विच इज 1.5 V1 minus 0.5 V2 इक्वेशन 1. उसी तरीके से आपने यहाँ पर I2 नोड B पे फाइंड किया. यू आर गेटिंग IA plus IC. यू कैन अज्यूम योर ओन डायरेक्शन, नो इश्यू. अकॉर्डिंगली यू कैन फॉर्म द इक्वेशन. सो आई एम गेटिंग इक्वेशन फॉर I2 इन दिस फॉर्मेट अगेन बाय यूजिंग KCL एंड देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ. अब इसको सॉल्व करते हैं. 1/2 इज अगेन 0.5. सो I2 is equal to 0.5 into V2 minus 0.5 into V1 plus, again here I have 1/2, so I can write it as 0.5 into V2. Collect the terms of V1 first, because as per our generalized equation we need V1 and then V2. So minus 0.5 V1, 0.5 gives me 1, so therefore it is V2. This is what the expression for I2. So equation 2. So we have these two equations. Let us rewrite those two equations. I1 is equal to 1.5 V1 minus 0.5 V2. 1.5 V1 minus 0.5 V2. Equation for I2 is minus 0.5 V1 plus V2. That is equation 2. Okay. Now we have the generalized equation for admittance parameter. What is that? I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2. अगर आपको याद होगा तो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था. I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2. Okay. Now similar way you can write it for I2 current. So I2 current का इक्वेशन आपका मिल जाता है. I2 current का इक्वेशन आपको मिल जाता है as
ओके, सो इक्वेशन फॉर I1 क्या लिखा था हम लोगों ने? I1 इज इक्वल टू 1.5 V1 माइनस 0.5 V2. उसके बाद इक्वेशन फॉर 2 जो हम लोगों को मिला था, इट इज माइनस 0.5 V1 प्लस V2. Okay, we have compared those two equations. This is equation 1, this is equation 2. Then we compared those two equations with our general form. So I1 and Y12 V2. Then I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. Okay. So ये है equations हमारे. Let us say this is equation A, equation B. Now what you have to do, compare equations 1 and 2 with equations A and B. So इसको आप कंपेयर करें. अब जैसे यहाँ पर है I1, यहाँ पर है I1, उसके बाद 1.5 V1, यहाँ पर है आपका Y11 V1. So इसका मतलब what is the value of Y11? The value of Y11 is 1.5. Okay. Then minus 0.5 V2. यहाँ पर क्या है आपके पास? Y12. So value of Y12 is minus 0.5. उसके बाद यहाँ पर है आपके पास I2 के फॉर्म में, I2 के इक्वेशन में, it is Y21. So therefore Y21 is minus 0.5. And यहाँ पर है आपके पास 1 और यहाँ पर है Y22. So value of Y22 is equal to 1. So the matrix for short circuit parameters is equal to this 1.5 minus 0.5 minus 0.5 and 1. So this is the first task which was asked. Now the another task which they have asked is find whether the network is symmetrical and reciprocal. अब symmetrical यानी S. अच्छा, इसको एक और याद रखने का तरीका है. जैसे हम लोग अल्फाबेट देखते हैं ना, A से लेके Z तक, तो आप लोग जानते हो कि रेसिप्रोकल सबसे पहले आता है और उसके बाद फिर सिमेट्रिकल यानी पहले R आता है, उसके बाद S आता है. सो R इज रेसिप्रोकल एंड S इज सिमेट्रिक. सो R का कंडीशन रहेगा आपका Y12 इक्वल टू Y21 और सिमेट्रिकल का कंडीशन रहेगा Y11 इज इक्वल टू Y22. यानी ये कंडीशन आपको चेक करना है कि भैया रेसिप्रोकल है और सिमेट्रिकल है क्या. सो सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल दे हैव आस्क्ड. तो सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल है क्या देखते हैं. सो वेदर द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल इज satisfied or not. So let us check. अब रेसिप्रोकल का कंडीशन Y12 इक्वल टू Y21. Y12 का वैल्यू क्या है? Y12 का वैल्यू कितना है? माइनस 0.5. Y21 का वैल्यू कितना है? माइनस 0.5. So it means this particular condition is satisfied. Okay. उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिकल. अब सिमेट्रिकल का कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी कहा, Y11 इज इक्वल टू Y22. तो यहां पर देखते हैं Y1 का वैल्यू है 1.5 और Y22 का वैल्यू है 1. सो इट मींस आर नॉट इक्वल, hence not satisfied. Not satisfied, it means it satisfies the reciprocal and it doesn't satisfy the symmetrical condition. So it is not satisfied. Okay, so that's all with this. Do you find any question on this particular numerical? Any question on this issue? Any question on this particular numerical? Sir, show the last slide.
last 20. I think I have okay. Okay, Abbas, just tell me the law which Kirchhoff's law is applicable to this admittance parameter. Abbas, Yes, sir. tell me the law which is applicable to get this admittance parameter. Sir, KCL. Okay, Abhilasha, Yes, sir. what are the equations for admittance parameter, or what are the generalized equation for short circuit parameters? I1 equal to Y11 V1 plus Y12 V2 and I2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2. Okay, Abhishek, Abhishek, Yes, sir. Abhishek, just refer this particular circuit and tell me how we have proceed for the circuit calculation. Refer this circuit and just tell me how we proceed for this particular circuit calculation. What is our first step? What is our first step to get the short circuit parameters? यानी आपके सामने अगर सर्किट आ जाते हैं तो आपसे आपने सबसे पहले शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स के लिए आपने स्टेप कौन सा यूज किया? ओके, आंचल, आंचल, Yes, sir. how you proceed for the calculation of admittance or short circuit parameters? Sir, first we using law KCL. ओके, तो केसीएल में आपने पहले क्या देखा फिर उस सर्किट में? आदित्य, आपने केसीएल उस सर्किट में कैसे अप्लाई किया? सर एट पॉइंट ए हमने इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को देखा सर, फिर I1 इक्वल टू IA प्लस IB। वेरी गुड सर देन हमने IA और IB को ओम्स लॉ के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया सर। वेरी गुड। ओके, आदित्य फुलझले, Yes, sir. आपके पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपका I1 के टर्म्स में है और इक्वेशन 2 आपका I2 के टर्म्स में है। तो आपने क्या किया? After getting these two equations, what you did with the what you did to get the admittance parameter? कंपेयर किया 1 and 2 को। कौन से दो इक्वेशंस के साथ? A और B मतलब ये I1 equals to Y11
इंटू V1 प्लस Y12 V2 A हो गया, तो उसको कंपेयर किया अपन ने I1 और I2 के साथ। वेरी गुड। तो आपको 4 पैरामीटर्स मिल गए, y11, y12, y21 एंड y22। ठीक है। ओके, नाउ टेल मी आदित्य, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल? Y12 equals to Y21। Okay, is that particular condition satisfied for the given numerical? Yes sir। Okay, what is symmetrical condition? Y11 equals to Y22। Okay, is that satisfied for the given numerical? Not satisfied sir। It is not satisfied. Chalo, very good. Okay, now let us check the third question, which the third part of the same question which is asked, that we have to find out the impedance parameters also. Okay, so यहाँ पर आपको impedance parameters भी calculate करना है। तो impedance क्या रहेगा? तो we know from fundamental z is equal to 1 upon y। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ it is equal to y inverse। इसका मतलब क्या होगा कि z11, I think all of you can see this, z11, z12, z21, z22, this particular matrix is equal to inverse of y11, y12, y21 and y22, इसका इनवर्स। अब इसका इनवर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आई थिंक ऑल ऑफ यू ओनली सेड दैट you have to find the 1 upon determinant, और determinant of admittance matrix रहेगा आपका multiplied by, I don't remember this exactly, but you can just check. I think this is y11 only, this is minus y12 minus y21 and this is y22. So please just check this and use this formula to get the values of z11, z12 and z21, z22. So can you just solve this and tell me the answer to impedance parameter? I just give you 5 minutes to get the answer. हेलो सर। Yes. हेलो सर, वो y11 और y22 इंटरचेंज हो जाएंगे सर। Okay. So this is say y22 and this is y11. Okay. So just tell me the values of impedance parameters. Take 5 minutes to get the answer. Okay, so the next is Aditya Fuljale. Then next is Aishwarya. Aishwarya, just tell me the answer to this. यस सर, सॉल्व कर रही हूँ सर। ठीक है। Sir, Yes. 0.8, 0.4, 0.4, 1.2. 1.2, फाइन। क्या आप सब लोगों को ये आंसर मिल रहा है क्या? चेक करें। यहाँ से मेरे ख्याल से आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, अदरवाइज बाकी चीजें तो कोई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव टू राइट दिस। हाँ, एक करना होगा, आफ्टर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स y22 से। आपका ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यस,
Let us check whether the Aishwarya is also getting this answer. Okay, those who have done, they can write this second numerical. सर डायरेक्टली इनवर्स निकाल सकते हैं. अच्छा, आपके कैलकुलेटर में वो फंक्शन दिया होगा. नहीं सर, सब भी इसमें रहता है. हाँ, माने आपके कैलकुलेटर में, आपका नहीं, सबके कैलकुलेटर में फंक्शन दिया है. हाँ. ओके, ठीक है. So this is another numerical 11 dash 22 dash. The values are okay. So let us call this as node A again, this as node B again. अगर ये आपका V1 है तो ये रहेगा आपका I1, ये अगर V2 है तो ये रहेगा आपका I2. ओके, बाकी स्टूडेंट्स, वेदर ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ऐश्वर्या? Yes sir, same answer. सेम आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट अनुष्का. Yes sir. इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को दिया हुआ है, आपने लिखा होगा, Yes sir. है ना? बताइए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप. सर KCL अप्लाई करेंगे नोड ए और बी पर. ओके, सो नोड ए आपको, पर पहले. ठीक है. सो केसीएल हम लोग अप्लाई करेंगे नोड ए पर और फिर नोड बी पर. तो नोड ए पर केसीएल अप्लाई करने से पहले हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ का पोटेंशियल अनुष्का कितना रहेगा? नोड ए का पोटेंशियल कितना रहेगा? अच्छा, अनुष्का ये बताइए, क्या नोड ए का और नोड 1 का जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम रहेंगे क्या? नहीं सर. नहीं रहेगा. अच्छा, पहले वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल को. जैसे यहाँ पर हमने देखा था नोड 1 और नोड ए का पोटेंशियल सेम था V1, नोड बी और नोड 2 का पोटेंशियल आपका सेम था V2, बराबर. अब उसी तरीके से यहाँ पर इस नोड का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा. और सेम क्यों नहीं रहेगा? यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका नोड 1 और नोड ए के बीच में? 1 ओम. अब 1 ओम का अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके अक्रॉस कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल आपका कुछ अलग रहेगा. तो लेट अस नेम दिस वोल्टेज एज V3, क्योंकि आपका ये V1 है, यहाँ पर आपके पास V2 दिया गया है, तो ये नोड का पोटेंशियल हम नाम दे देते हैं V3. ठीक है. अब दूसरा, अब नोड बी का पोटेंशियल कितना रहेगा? V4 रहेगा. या क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि नोड 2 और नोड बी आपके दोनों सेम रहेंगे? हाँ सर, सेम रहेंगे. तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा फिर? V2. ओके, नहीं. सही है ना, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो सेम पोटेंशियल नहीं होगा. हाँ हाँ. ओके, चलो. अब I1 करंट आपका इस नोड ए तक आएगा, I1, और नोड ए पे करंट ये आपका डिवाइड होगा. अब इस करंट को मैं नाम दे देता हूं IA, और दूसरा करंट मेरे लिए रहेगा IB. तो KCL एट नोड ए क्या रहेगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. अच्छा, नोड ए पे कौन कौन से इनकमिंग करंट्स है? I1 हाँ, इज इक्वल टू IA प्लस IB. ओके. अब यहाँ पर इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपने I1 का इक्वेशन नहीं लिखा था क्योंकि I1 आपके पास था, लेकिन यहाँ पर I1 आपका अलग रहेगा. क्यों? क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. तो I1 का इक्वेशन क्या होगा बता सकते हो ओम्स लॉ के हिसाब से? V3 इज इक्वल टू नहीं, I1 इज इक्वल टू V3 अपॉन 1 ओम. ओके, I1 कहां से कहां पास हो रहा है?
ए नोड ए से नोड 1 से नोड ए तक। नोड 1 से नोड ए तक, बराबर। अब नोड 1 का पोटेंशियल कितना है? 1। नोड 1 का पोटेंशियल कितना है? V1। V1। और नोड ए का पोटेंशियल कितना है? V3। इसका मतलब I1 का इक्वेशन क्या होगा फिर ओम्स लॉ के हिसाब से? V1 माइनस V3। और रेजिस्टेंस? 1 ओम। ओके। IA का इक्वेशन, IA आपका V3 से लेके V2 तक जा रहा है, तो IA का इक्वेशन V3 माइनस V2। V3 माइनस V2, ओके। और रेजिस्टेंस? 2। ओके। प्लस IB करंट आपका V3 से इस नोड तक जा रहा है। अब यहाँ पर पूरे नोड 1 डैश से 2 डैश तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम लोग रेफरेंस नोड ले सकते हैं। हाँ। अब इस रेफरेंस नोड का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। तो मुझे बताइए IB का इक्वेशन क्या होगा फिर? V3 माइनस 0/2। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। सो आई कैन जस्ट राइट, अच्छा एक हो सकता है कि हम लोग यू कैन डायरेक्टली से दैट, जैसे यहाँ पर मैंने I1 इक्वल टू V1 माइनस V3/1 लिखा, हालांकि हमें इक्वेशंस किस फॉर्मेट में चाहिए? I1 के फॉर्मेट में चाहिए। सो व्हाट आई जस्ट राइट इज I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V3। आई जस्ट कॉल दिस एज इक्वेशन 1, ठीक है। और उसके बाद I1 का जो दूसरा इक्वेशन हमें आ रहा है वो I1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2/2 प्लस V3/2। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यानी ये जो I1 का इक्वेशन हमने लिखा ये भी है आपके पास V1 माइनस V3/1, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, क्योंकि हम लोग इक्वेशन सारे I1 के टर्म्स में लिखते हैं इस वजह से। तो ये I1 का इक्वेशन हो गया आपका इक्वेशन 1। I1 का और एक इक्वेशन आपके पास आता है, वो आता है कि I1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2/2 प्लस V3/2। अब इसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो आपको मिलता है 0.5 V3 माइनस 0.5 V2 प्लस 0.5 V3, और यहां से आपको मिलेगा I1 इज इक्वल टू, अब माइनस 0.5 V2 मैं पहले ले रहा हूं, माइनस 0.5 V2 प्लस 0.5 V3, 0.5 V3 आपका हो जाएगा 1, सो आई कैन राइट इट एज V3। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? कोई दिक्कत? ओके। अब यहां से मैं क्या करता हूं, आई जस्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर V3 एम्प्लाइज V3 इज इक्वल टू, अब V3 इक्वल टू क्या होगा? ये 0.5 V2 मैं लेफ्ट में भेजता हूं, यानी V3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? I1 प्लस 0.5 V2। ये हो गया मेरा V3 का इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को मैं यहां चेंज करता हूं। आप सब लोगों को दिख रहा है ना नीचे वाला ये पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है, I1 इक्वल टू 0.5 V2 प्लस V3, ये इक्वेशन दिख रहा है क्या सब लोगों को? यस सर। ठीक है। सो I1 इक्वल टू माइनस 0.5 V2 प्लस V3, और इस इक्वेशन से आपने V3 का इक्वेशन लिखा है, उसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2। तो एक बार मैं फिर से, जैसे अभी इन्होंने बताया अनुष्का ने कि KCL आपने नोड A पे लगाया, तो आपके पास I1 इक्वल टू IA प्लस IB आ गया। आपने फिर I1 को ओम्स लॉ लगाया V1 माइनस V3/1, इसको मैंने अलग से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैंने अलग से लिखा, इस ओम्स लॉ को मैंने अलग से लिखा, और मैंने लिखा है I1 इक्वल टू V1 माइनस V3 इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे सारे इक्वेशंस यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हिसाब से मुझे इक्वेशन किस टर्म्स में चाहिए? I1 लेफ्ट हैंड में रहना चाहिए, और V1 V2 के जो कांस्टेंट पैरामीटर्स है वो राइट साइड में रहने चाहिए, राइट हैंड साइड में। उसके बाद I2 लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, और फिर से V1 V2 के पैरामीटर्स मेरे राइट साइड में रहने चाहिए। तो I1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और मेरे पास आ रहा है V1 माइनस V3, तो उसको मैंने दिया इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा दूसरा इक्वेशन है I1 और I1 का, ये वाला, तो ये इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा, उसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने V3 के फॉर्मेट में उसको इक्वेशन लिखा, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए?
What should be my next step? Anyone can just guess what should be my next step? What should be my next step? Anshul? Yes, sir. What should be my next step? सर इक्वेशन 2 में I1 की वैल्यू डालेंगे। यस, इक्वेशन 2 में आप I1 की वैल्यू डालोगे, तो बताते जाइए, मैं लिखता हूँ। सर V3 इक्वल्स टू 0.5 V2। 1 सेकंड, पुट 2 in 1, सो 1 है मेरा I1 इक्वल टू V1, बराबर, माइनस मुझे V3 का वैल्यू डालना है, सो व्हाट आई गेट इज यस माइनस, हाँ बोलिए बेटा। V3 इक्वल्स टू 0.5 V2 प्लस I1। हाँ देखो ना इक्वेशन क्या है, मेरा माइनस V3 है, तो माइनस V3, अब V3 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, I1 प्लस 0.5 V2, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा आपको, माइनस 0.5 V2। सॉरी एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर आपका I1 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। मॅथ्स शिकलाय का रे, हा I1 प्लस आहे आणि हा मायनस आहे म्हणून कॅन्सल होईल का? ओके, नाउ यू शिफ्ट दिस I1 इकडे चाललं आहे ना, लेफ्ट साइड में आपका I1 चल जाएगा, तो I1 Yes, प्लस sir, I1 yes, कितना sir. होगा, I1 प्लस I1 कितना होगा, 2I1। 2I1, so 2I1 इज इक्वल टू V1 माइनस 0.5 V2, बराबर। अब I1 के टर्म्स में आपको इक्वेशन चाहिए, सो I1 के लिए 1/2 जो है, सॉरी 2 जो है, ये आप डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन से, V1 माइनस 0.5 V2 अपॉन 2। हाँ, तो डायरेक्टली मैं लिखूं क्या ये V1 अपॉन 2 यानी 0.5, यस सर। और 0.5 अपॉन 2 कितना आएगा, 0.25। ठीक है। सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में I1 मिल रहा है और राइट हैंड साइड में मुझे V1 और V2 के कांस्टेंट्स मिल रहे हैं, यानी इक्वेशन 3। यहां तो कोई दिक्कत, एनी क्वेश्चन? चलो, अंशुल के बाद कौन है? यस, आफ्टर अंशुल आयुषी। Yes, sir. Yes, dear. Tell me next step. अच्छा, आप KCL आप कौन से इस पे मतलब अप्लाई करोगे अब? KCL Node B. नोड बी पर, बराबर। चलो, एक काम करते हैं, नोड बी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नोड बी आपका आ रहा है रेजिस्टेंस 2 ओम से, ये है आपका नोड ए, यहाँ का पोटेंशियल है आपका V3, और ये है आपका नोड बी, यहाँ का पोटेंशियल है आपका V2। ये जा रहा है आपका 2 के तरफ, यहाँ से और एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 4 ओम्स, तो ये है 2 ओम्स, ये है 4 ओम्स, और यहाँ पर है आपके पास 2 डैश, और यहाँ का पोटेंशियल है आपका V2, और इस V2 के हिसाब से आपके पास यहाँ का करंट है I2। अब मैं क्या करता हूं, जैसे हम लोगों ने पहले IA ही नाम दिया था, इस करंट को आपने IA दिया था, यहाँ का IB दिया था, तो वही चीज है, सिर्फ मैं ये करंट का, ये ब्रांच करंट का नाम आपका सेम रहेगा, सिर्फ उसको मैं उल्टा कंसिडर करता हूं, क्योंकि यहाँ से एक्साइटेशन है, और जो 4 ओम से जो करंट पास हो रहा है उसको मैं नाम देता हूं IC, जो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में जैसे हमने किया था उसी तरीके से। सो आयुषी सांग, KCL एट नोड बी क्या रहेगा? I2 equals to IA minus IC. या IA प्लस IC, सर आउटगोइंग करंट है ना, है ना, तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट क्या रहेगा? I2 इक्वल टू IA प्लस IC, यस सर, है ना, सो I2 इज इक्वल टू IA प्लस IC। ओके, अब I2 का इक्वेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो I2 आप डायरेक्टली लिख सकते हो I2। IA क्या रहेगा आपका? V2 minus V3
अपॉन 2 वेरी गुड, अपॉन 2। और IC का इक्वेशन V2 माइनस 0 अपॉन 4 V2 माइनस 0/4, वेरी गुड। इम्प्लाइज आप ही कंटिन्यू करते जाए ताकि मैं फास्ट लिख कर सकूं। सो आई जस्ट राइट 0.5 V2 बराबर है माइनस 0.5 V3 प्लस 1/4 यानी होगा आपका 0.25 V2, राइट। सो अब मैं V2 के टर्म्स कलेक्ट करता हूं। सो व्हाट आई कैन राइट इज, ये है 0.5, ये 0.25, तो मुझे मिलेगा 0.75, 7.5 या 0.75, 0.75 ठीक है। मेरा V1 और V2 रहना चाहिए, whereas I am getting V3 here, right? So what can I do? So what I can do so that I can get V1 here on right hand side. Yes friends, V3 का इक्वेशन आपका ये है, तो क्या करना चाहिए जल्दी? V3 की वैल्यू पुट करेंगे। Okay, so put V3 in above equation. Put V3 in above equation. Okay. अब जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में आप V3 का वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? I2 is equal to 0.75 V2 बराबर माइनस 0.5, अब माइनस 0.5 V3, सो 0.5 V3, अब V3 है आपका I1 इंटू 0.5 V2, तो बताइए क्या रहना चाहिए फिर? 0.5 I1 बराबर माइनस 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.25, सो 0.25 V2 बराबर। और क्या करना चाहिए? और कुछ यहां पर पुटअप करें। चलो ये माइनस 0.25 V2 आपका हो गया, तो 0.75 माइनस 0.25 कितना आएगा? 0.5 V2 माइनस 0.5 I1। क्या अभी भी मेरा पर्पस सॉल्व हो चुका है क्या? मुझे लेफ्ट हैंड साइड में I2 चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास V1 और V2 रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ V2 आ रहा है। क्या करना चाहिए? अच्छा एक बार फिर से देखते हैं जो आयुषी ने बताया। नोड बी पे आपने KCL अप्लाई किया, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, I2 इज इक्वल टू IA प्लस IC आपने अप्लाई किया। यहां से आपने ओम्स लॉ लिखा, I2 इक्वल टू V2 माइनस V3 अपॉन 2 प्लस V2 अपॉन 4। आपने 1/2 यानी 0.5 से सॉल्व किया पूरे ब्रैकेट को V2 और V3 से, तो आपको मिल रहा है ये टर्म्स। फिर आपने 0.5 और 0.25 यानी V2 के कांस्टेंट पैरामीटर्स कलेक्ट किए, तो आपको मिल रहा है 0.75 V2 माइनस 0.5 V3। फिर आपको ध्यान में आया कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में I2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में V1 अब्सेंट है, यानी यहाँ पर V2 और V1 रहने चाहिए। तो इसलिए आपने क्या किया कि पुट इक्वेशन यानी V3 का जो इक्वेशन है इन अबव इक्वेशन, तो आपने V3 का जो इक्वेशन है इसमें डालने के बाद आपको मिल रहा है 0.75 V2, 0.5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल रहा है I1 0.5 I1 माइनस 0.25 V2। उसके बाद आपने फिर से V2 के टर्म्स कलेक्ट किए तो आपको मिल रहा है 0.5 V2 माइनस 0.5 I1। अब आपने क्या करना चाहिए? चलो एक बार फिर से पिछला स्टेप देखते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर? आयुषी कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? I1 की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। वेरी गुड, यस। तो इसका मतलब पुट I1 इन अबव इक्वेशन, put I1 in above equation. Okay, so I2 is equal to 0.5 V2 minus I1 का वैल्यू है 0.5 V1 minus 0.25 बराबर। So 0.5 into 0.5 कितना होगा? 0.25, 5-5-25, so 0.25 V1। ओके, उसके बाद ये माइनस है, so माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा बराबर। और यहाँ पर है माइनस 0.5 इंटू 0.25 और यह है आपका 0.5, सो 0.5 इंटू 0.25 7.5 या 0.125 0.125 हाँ 0.125 0.125 और यहाँ पर क्या रहेगा? V2। अब फिर से V2 के टर्म्स कलेक्ट करें, लेकिन सबसे पहले आपको V1 लिखना है, सो 0.25 V1। आपने पहले V1 का टर्म यहाँ पर लिखा। नाउ 0.5 प्लस 0.125 कितना होगा?
0.625. ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3 के बाद हो गया इक्वेशन 4। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एनी क्वेश्चन? ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि एक सिर्फ रेजिस्टेंस ऐड होने के वजह से 1 और नोड ए के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐड हुआ, जिसके वजह से आपके ये स्टेप्स बढ़ गए। वरना जैसे पहला न्यूमेरिकल आपका हार्डली 2 या 4 स्टेप में आ गया था, वैसे ये भी आ सकता था, लेकिन यहां पर नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम बिटवीन नोड 1 एंड नोड ए। ओके, सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप में से किसी को? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट आर्या। आर्या, ओके, तो आपने यहां तक सुना, तो नाउ जस्ट टेल मी द नेक्स्ट स्टेप टू दिस। क्या करना चाहिए अभी इस पर्टिकुलर स्टेप में? ओके, सो लेट अस राइट 3, इक्वेशन नंबर 3 यहां पर मैं लिखता हूं। सो I1 का वैल्यू लिखा मैंने इक्वेशन 3 से, इट इज 0.5 V1 माइनस 0.25 V2। ओके, इक्वेशन 3 0.5 V1 माइनस 0.25 V2। उसके बाद इक्वेशन 2 I2 इक्वल टू 0.25 V1 प्लस 0.625 V2, 0.625 V2. So this is your equation 3 and this one is equation 4. क्या करें यहां पर? Yes, आर्या, क्या करना चाहिए अभी? कारपेंट्री शॉप मध्ये बसली आहेस का? नहीं सर। सो टेल मी, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करना चाहिए? सर इक्वेशन 2 ला Yes, next, can anyone just tell me? सर कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर करेंगे, राइट आयुषी। सो कंपेयर करने के बाद व्हाट आर द वैल्यूज? व्हाट आर द वैल्यूज? आयुषी जस्ट, यस सर। हाँ, y11, y12, y21 और y22 मैट्रिक्स। 0.5 वेरी गुड, माइनस 0.25, ओके। 0.25, अच्छा, ये माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है? मैंने गलती से, हाँ ये माइनस है, सॉरी हाँ बच्चा पार्टी, ये माइनस है, माइनस 0.25, हाँ 0.625। वेरी गुड, ओके। तो दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर एडमिटेंस, ये करेक्ट है? यहां तो कोई दिक्कत? ओके, चलो पहली रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है? y12 equals to y21. Okay, y12 is equal to y21. So tell me the reciprocity condition, whether it is satisfied or not. Unsatisfied. सर सेटिस्फाइड। Yes, it is satisfied. Correct. Okay. Now whether next condition, symmetry or symmetrical condition, whether it is satisfied or not. Sir, not satisfied. Yes, it is not satisfied. Reason तो आप लोग देख सकते हो, 0.5 is not equal to 0.625, right? So not satisfied. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चल, now can you just find out the values of Z11, Z12, Z21 and Z22?
Just tell me the values of Z11, Z12, Z21 and Z22. ओके चलो मुझे बताइए कितने लोगों को यहाँ तक लिखना नहीं हुआ है? कोई ऐसा स्लाइड न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2 दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, तो कोई ऐसा स्लाइड जिसका जो आपका लिखना नहीं हुआ? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, ओके ये वाला? हाँ यस सर, बस यही। So all of you done with this? Bhushan? Yes sir. Okay. Can you just tell me the values of the impedance parameters? I can find out. एक मिनट। So do you know how to find that impedance parameters? Yes. Okay, fine. माहिती आहे तुला तू कसं फाइंड करायचं ते impedance parameters? हो सर, करत आहे। बरोबर, ठीक आहे. Sir, 2.5. Okay, just a second. Okay, 2.5. 1. 1. 1. 2. Okay, fine. All of you are getting the same values for the impedance?
कोई ऐसा जिसको थोड़ा अलग वैल्यूज मिले होंगे? Okay, fine. So all of you are getting the same values. So let us start with the next parameters. All of you please write down heading as transmission parameters. सर Yes. सर जैसे हम एडमिटेंस निकाल के फिर उससे इम्पीडेंस निकालते हैं इन्वर्स करके, हाँ तो वैसे ही अगर हम एक ही मेथड फॉलो करें इम्पीडेंस निकालने का KVL, हाँ तो नहीं चलता क्या? नहीं, लेकिन अगर उन्होंने शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स पहले पूछे हैं तो आपको KCL लगा के ही फाइंड करना होगा। हाँ ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग सर्किट तो KVL, हाँ ओपन सर्किट है तो KVL। हाँ, ओपन सर्किट पैरामीटर से तो KVL। ओके, सो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। अब तक जैसे हम लोगों ने दो पैरामीटर्स देख चुके हैं, एक है आपका इम्पीडेंस। अब आप लोग जानते हो कि इम्पीडेंस क्या होता है, या जैसे हमने देखे दो पैरामीटर्स, एक आपने देखा इम्पीडेंस पैरामीटर और दूसरा देखा आपने एडमिटेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस पैरामीटर यानी इम्पीडेंस का रेशियो जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एडमिटेंस का जो रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ओके, जब आपने इम्पीडेंस के लिए इक्वेशंस डिराइव किए तो आपने लिखा था जैसे जस्ट एन एग्जांपल, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। फिर आपने V2 लिखा Z21 I1 प्लस Z22 I2। उसी तरीके से जब आपने एडमिटेंस पैरामीटर्स देखे तो आपने लिखा इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म एज I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये इक्वेशंस आपको याद हो जाए, इस वजह से मैंने फिर से आपको लिख के दिए। तो इसका मतलब यू हैव यूज्ड दीज फॉर्मेट्स, जहां पर आपने इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इक्वेट किया, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इक्वेट किया। यहां पर आपने इनपुट और आउटपुट करंट को इनपुट और आउटपुट वोल्टेज से इक्वेट किया, और उसके फिर आपके उसके पैरामीटर्स आपने लिखे, जिसको हम कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट, इम्पीडेंस, एडमिटेंस, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, रिवर्स, देन फॉरवर्ड, है ना। सो लाइकवाइज यू हैव रिटन द वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव इम्पीडेंसेस। अब इसके अलावा और कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या? तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ABCD, दैट इज नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज ABCD पैरामीटर्स। ABCD पैरामीटर्स क्या होंगे? ओके, ये लिखना है आप लोगों को। ये मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ चुका है कि भैया यहाँ तक होता है ना। सो here up to this particular point you know like what is impedance parameters, what is admittance parameters, etc.